आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव. फटाफट से एक बार मुझे कंफर्म करके बता देना वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट. एंड टुडे वी हैव AIR4 CA अक्षत जैन. कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षत फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड थैंक यू। वो क्लीशे क्वेश्चन जो आपने अभी जितने भी इंटरव्यू दिए सब ने आपसे पूछा रहेगा. हाउ डू यू फील और हाउ डज इट फील टू बी एन AIR4? It's unbelievable to get a single digit rank that to AR4. जब वो स्क्रीन पे मेरे मोबाइल स्क्रीन पे लोड हुआ था एंड 4 दिखा, आई रिमेम्बर आई टुक few seconds to digest it. My mom was sitting right in front of me और वो पूछ रही कि क्या हुआ, और फिर एक बार थोड़ा खुद ने हाफ डाइजेस्ट किया, फिर मैंने उनको बताया कि यार फोर्थ लगी है. एंड as soon as that happened, she started crying. I was emotional for the first time after my result. Any of my past results, I've never been emotional, but this time was different. अक्षर डिड यू चेक योर रिजल्ट अगेन? मतलब एक जनरली मैं होता तो मैं बोलता एक बार चेक कर लेते सही है कि नहीं. तो आपको ऐसा था कि एक बार एक चेक कर लेते वापस से कि है ही ना, अपना ही है ना? नहीं नहीं, मुझे वो विश्वास है कि यार ऐसा अगर एक बार आ गया है तो ये मेरा ही रिजल्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं होएगा. बहुत That I जबरदस्त didn't यार know. अक्षत. मेन मेरे को ऐसा लगता है कि अपने रिजल्ट्स में अपन तो खुश होते ही ऑफ कोर्स, बट द मेन पर्सन हु इज वेरी मच हैप्पी इज आवर पेरेंट्स. मतलब वो बहुत ज़्यादा Yes. खुश होते हैं. वो मतलब हर जगह अपने से ज़्यादा तो फ़ोन पे वो रहते हैं कि रिलेटिव्स को, अरे हमारे हाँ, बेटे पास हो गए, CA बन गया, रैंक आ गया. डेफिनेटली. जिस दिन आया था अपने को 7:30 AM को, 15 जुलाई को रिजल्ट आ गया था. एंड 7:30 से 12:30 तक आई वाज बिजी ऑन फोन कॉल्स, एंड सो वर माय बोथ ऑफ माय पेरेंट्स. Like my dad is a chartered accountant himself, so he was talking to more of the professional people that particular space. My mom was talking more to relatives and friends and families. And my dad, because he himself is a reputed chartered accountant, he got messages from over 3-4 thousand fellow chartered accountants. ओह दैट्स So it ग्रेट. was a very happy moment for him also. He took a lot of pride in this particular journey. यस ऑफ कोर्स डैड को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि देन Uh, ही मस्ट हैव बीन एबल टू रिकॉल हिज डेज ऑफ CA देन. yeah, even he's a first attempt chartered accountant. And also at that time Yeah, 1989. when clearing CA even was not easy. Yeah, definitely. At that time, I heard the pass percentage was in single digits. Absolutely. Chalo, I would also request everyone who are there in the chat box, you can ask your queries. I will try to take up maximum questions and ask Akshat his secret ideas to get a rank. So Akshat, I have some questions till then. First of all, Akshat, I want to know what was your daily plan like during your study days? How will Akshat plan his day accordingly? Okay, my daily plan, it was 12 12 a.m. को तो रात में सोता था मैं, Okay. and 7 a.m. को सुबह उठता था. After waking up, I used to study immediately after waking up for around 1.5 hour. And मैं थियोरी उठाता था सुबह, क्योंकि सुबह मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा फ्रेश दिमाग होता है सोने के बाद. ठीक है, तो 1.5 hour तो मैं सुबह पढ़ लेता था थियोरी. देन आई वुड हैव सम ब्रेकफास्ट, पोस्ट विच अगेन टिल 10:30 11 आई वुड स्टडी थ्योरी. और 2.5 घंटे, 8:30 से 11 बजे आप बोल सकते हैं मैं थ्योरी पढ़ता था. Hmm. 11 बजे से कुछ 11:15 11:15 तक आई वुड टेक a 10-15 minute break, post which 11:15 to around 12 12:30 or 1 also on many days I used to again study, Hmm. post which there would be a half an hour lunch. And I'm that kind of a person, so lunch पे I just like to have delicious food. And मैं उस समय किसी से बात नहीं करना चाहता. I want to be in my zone and I love to watch something. So I would watch YouTube पे, and something non academic. मुझे उस समय पढ़ा, that is like my break. तो मैं उस समय कुछ शो देख लेता था, something cheerful which helps me and eases the rest of the day. Post which, after the lunch, which was of half an hour, I would take a nap ranging from 30 minutes to 1 hour. Um, Months, like 1 2 months before the exam, it was half an hour का nap. Before that, it used to be 1 hour का nap. Because of which क्या होता था कि आपको आफ्टरनून लंच के बाद भी आपको रात तक 12 बजे तक पढ़ना है, राइट? एनर्जी तो मिलती है दैट वो इज, मैप से. उससे बहुत एनर्जी मिलती है, वापस आप रिफ्रेश होते हो. राइट. आपका करेक्ट. आधे 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं उसके बाद के घंटे. ठीक है. सो
ऐसे ही करते करते nap, and then immediately after the nap I would again study theory for an hour or so till 3 p.m. I would study theory. Why do I suggest कि nap के बाद भी आप theory करो, क्योंकि nap के बाद आप वापस fresh वापस हो गए. फ्रेश है, राइट. हाँ. क्या क्या करते हैं कि ऑडिट आप 6 घंटे लगातार पढ़ोगे तो वो नहीं जाएगा. चौथे घंटे के बाद वो इनफेक्टिव हो जाएगा. राइट. बट नैप के बाद अगेन आई वुड गेट दैट 1 hour मोर, वेयर अगेन आई वुड बूस्ट माय थ्योरी का Theory. परफॉर्मेंस फॉर द डे. राइट. सो 3 p.m. वाज माय हाफ डे का कट ऑफ. उसके बाद मैं प्रैक्टिकल उठाता था. तो प्रैक्टिकल आल्सो आई वुड, मैं ज्यादा ब्रेक्स मैं लेता नहीं था प्रैक्टिकल में. लाइक 3 से 5 o'clock तक आई वुड स्टडी, post which I would take a 10-15 minute break, you can say, for evening snacks, and then again 5:15 से 7:30 8 तक मैं पढ़ता था. Post which half an hour का dinner, again same like lunch. I don't like speaking to anyone, not any close family or friends while I'm having food, and I would watch some show. All that is during food. Then again 8:30 से 10 o'clock तक I would study. 10 o'clock से 11 o'clock तक I would take an hour's break, because where I used to head out of my house. Oh. So yeah, so I would go for a walk at Marine Drive. I would call up my friends. उनको पूछ रहा था कि अगर फ्री हो तो let's talk. That They was on would be free. daily basis you used to take this break? Yeah, 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 this yeah. is good. Yeah, this sounds interesting now. Yeah, so I would go out to Marine Drive, because आप 5-6 महीने बस घर पे आप बैठ के पढ़ नहीं सकते हो. आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, एकदम बर्न आउट हो जाएगा. तो इसलिए आई वुड go out there, I would take my phone, I would listen to songs sitting at Marine Drive. I would talk to friends, and I would say positive friends. हाँ, this You is need very that critical. This is positivity very around critical. you. Yes. And हम लोग ट्राई करते थे, एटलीस्ट फ्रॉम माय एंड. मैं कभी पढ़ाई की बातें नहीं करता था ब्रेक के समय. एंड वी यूज्ड टू जस्ट talk about other things, like, you can talk about sports, you can talk about movies, you can talk about what you are gonna do after exams. Just don't get too carried away by your plans. Right. because final अभी भी देना होगा that. बॉक्स से आने के बाद 1 घंटा वापस में पढ़ता था, तो 12 o'clock को मैं बंद कर देता था. देन 10-15 मिनट आई वुड चेक माय फोन, कोई मैसेज आ गया जरूरी, या फिर किसी से बात करनी हुई, मन हल्का करना हुआ, वो सब. तो 10-15 minutes you can check your phone in your least productive time, which was after 12 for me, and 7 a.m. again. Oh, so अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ की इनपुट्स बताऊं फ्रॉम अक्षत सिट्स कन्वर्सेशन एंड हिज डेली प्लान: टेक स्मॉल ब्रेक्स, टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, गो आउट टू मीट योर पॉजिटिव फ्रेंड्स एट नाइट. मतलब वो घर में 6 महीना तुम नहीं बैठ सकते, यू हैव टू हाँ. गो आउट एंड इंटरैक्ट विद पीपल. बट Yeah. ही यूज टू टेक स्मॉल ब्रेक्स. जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ वो बात नहीं करते थे. ही यूज टू ऑल्सो एंजॉय शोज. मतलब जनरली पता है ऐसा बोलते हैं, एक ऐसा नोशन है कि एआर लोग एकदम पढ़ाकू होते हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकलते, वो कोई शो भी नहीं देखते, वो रेस्ट भी नहीं करते, वो सोते भी नहीं. ऐसा नहीं है भाई. इवन ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ. वो रोज जा रहे राउंड मारने के लिए, रोज वो अपने शोज देख रहे हैं, लेकिन इट वॉज वेरी कैलकुलेटेड. ऐसा Yeah. नहीं है कि चालू किया तो अरे एक वो एपिसोड हुआ, अब हाउ कैन आई कंट्रोल माई इमोशंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, लेट्स वॉच इट नाउ. वो नहीं हो Yeah. रहा है. He is taking everything in control. So very good, Akshat. I like that. I would watch one episode of 20-25 minutes during lunch, dinner each. That's it. Oh, that's great. Akshat, Binge watch. एक सवाल है मेरे तरफ से. जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एक बार तो ऐसा आता है हर एक महीने में या 10-15 दिन में, जहाँ नहीं करता पढ़ने का मन. Where you हाँ. don't feel like studying, where you feel why am I doing CA, where you will ask all your questions which are all negative questions, right? मैं क्यों कर रहा हूँ CA में, क्यों आया CA में, मेरे से नहीं हो रहा है पढ़ाई, मुझे याद नहीं हो रहा है. ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? तो इतना नेगेटिव नहीं होता था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ सीए, बट आई गेट द आइडिया व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. तो क्या होता था, सीए फाइनल इतना वास्ट है, तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर था. तो ऐसा पूरा दिन तो मेरा नहीं गया कि यार पढ़ ही नहीं पाया, बट दिन बहुत दिन थे जहाँ मैं 12 घंटे की जगह 7-8 घंटे ही पढ़ पाया. पढ़ पाया. तो वैसे थोड़े घंटे मेरे कम थे, पूरा दिन ऐसा वेस्ट नहीं किया. एंड जब भी ऐसा हुआ, इट इज वेरी मच ओके. आई एम टेलिंग यू, मेरे 7 दिन एक हफ्ते में से यू कैन से 1-2 डेज ऐसे हो ही जाते थे जिधर 12-13 घंटे में नहीं कर पाता था. एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, अगर मेरा दिन अच्छा नहीं गया सुबह से, लेकिन मुझे टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग एट 12 am आई यूज्ड टू स्लीप एट 10 am. राइट. ताकि वो दिन तो खत्म हो अपना. 10 am में सो रहा हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई वुड ट्राई वेकिंग अप एट 4 am और समथिंग, ताकि एटलीस्ट कल का दिन तो मेरा वेस्ट नहीं हो. वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था. कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए वैसा. एंड एज आई एम सेइंग कि आपको सीए फाइनल आप दे रहे हो, तो
फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको, मुझे भी बहुत आए कि यार ये ऑडिट बहुत वास्ट है, एंड अगर टेस्ट में, अगर एग्जाम में नहीं स्कोर किया, अगर इस बार रैंक नहीं लगी तो यार क्या लोग बोलेंगे, बट ऑल दैट इज जस्ट नॉट रेलेवेंट। यू जस्ट नीड टू हैव योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप क्रैक कर सकते हो, आपने मेहनत की है। राइट, अगर आपने मेहनत की है तो ये सब थॉट्स इतने नहीं आएंगे आपको। ठीक करेक्ट, है, यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। नॉट ऑन योर रिजल्ट्स। एंड ऑल्सो देयर विल बी डेज वेर यू वोंट बी सो एफिशिएंट, बट या उसको सोचने के चक्कर में बाकी 2 दिन बर्बाद नहीं करने चाहिए। व्हाट पीपल हाँ डू इज, अरे कल मैंने पढ़ाई नहीं की, वो उसके चक्कर में आज बर्बाद कर देंगे, वो नहीं हाँ करना है। इट्स हाँ फाइन, देयर विल या बी डेज वेर यू वोंट बी एबल टू स्टडी। परफेक्ट अक्षत। करेक्ट। अक्षत, मुझे ये पूछना, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? मतलब आपका अटेम्प्ट था तो आपने कितने साल पहले शुरू की, एंड हाउ आप डिड यू गो अबाउट इट? ट्यूशंस पूछ रहे हैं या क्लासेस, सेल्फ? क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी बोथ। ओके, सो क्लासेस आई वुड से कि प्रॉपरली मैंने 18 मंथ्स बिफोर माई अटेम्प्ट, तो मई 22 के लिए नवंबर 20, आई ओके। रिमेम्बर बिफोर दैट मैं बहुत मजे कर रहा था। देयर वाज अ क्रिकेट टॉक शो व्हिच आई वाज होस्टिंग, आई गॉन टू एन एक्टिंग स्कूल, अरे आई वाह। वाज ऑल आउट फॉर माय आर्टिकलशिप, trying to learn more there. But then November 20 onwards, which was 18 months before, I knew कि यार सी ए फाइनल बहुत वास्ट है। आपको अगर कुछ अचीव करना है इधर अच्छे से, बिकॉज एक ही बार देना अपने को, दूसरी बार अपने को देना नहीं, तो एक ही बार देना तो मौका वापस नहीं आएगा एक्सेल करने का। करेक्ट। तो 18 months before I started, and my tuitions got completed 5.5 6 months before, 5.5 months before I think, and तब से मेरा सेल्फ स्टडी पूरा लग गया। ओके, परफेक्ट। तो मेरा जब से सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया 5.5 months पहले, तब से ही मेरा टारगेट वाज 12-13 hours एवरी डे, नॉट लाइक 8 hours फिर 10 hours, वैसा नहीं, 12-13 hours डायरेक्टली। कंसिस्टेंट 12-13 आवर्स। या अक्षत, आपने कितने रिवीजन कर पाए थे आप? मतलब एक बार तो आपने क्लासेस करी, क्लासेस के टाइम आप डेली रिवीजन करते थे अक्षत वैसे? नो, आई डिड नॉट गेट टाइम, आई वाज इन अ बिग फोर आल्सो, और अगेन लेक्चर्स आर टू मेनी एंड टू मेनी आवर्स आर देयर। तो मैं जब लेक्चर्स देख रहा था, माय प्राइम फोकस वाज, इंस्टेड ऑफ मेरा खुद का रिवीजन, मैं पहले पोर्शन कंप्लीट कर कंप्लीट करना लेते थे। चाहता था लेक्चर्स के थ्रू। राइट। क्योंकि मैं अभी 15 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ भी लो तो भी एग्जाम 15 महीने बाद होने वाला है, इतना उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लेक्चर्स मैंने टाइम पे खत्म कर लिए तो अंत के 5-6 मंथ्स में मैं सेल्फ सेल्फ स्टडी कर स्टडी कर पाऊंगा, पाओगे। विच इज गोना हेल्प मी ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स वर यू एबल एंड टू रिवाइज थिंग्स ड्यूरिंग योर रिवाइज। सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी में मैंने पहली बार पूरा सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, 8 सब्जेक्ट्स, उसके बाद मैंने 2 रिवीजन किए, तो यू कैन से टोटली 3 किए मैंने टोटल टोटली। 3। और या आपने मॉक टेस्ट दिए थे क्या अक्षत? मुझे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो किसका देना चाहिए? नहीं, मॉक टेस्ट तो आप दो, और किसका ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सारे ही सब्जेक्ट्स का आप दो। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको कैलकुलेशन, थिंकिंग, वो सब का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। प्लस प्रैक्टिकल पेपर्स टेंड टू बी लेंदी आल्सो एट टाइम्स, लाइक एफआर एंड डीटी। राइट। थ्योरी पेपर्स में आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको वो फीलिंग। ऑडिट में आप चाहे कितना भी कर लो, पेपर में वो क्वेश्चन, चलो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो भी मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही जिसका आपको कुछ नहीं आता। ठीक राइट। है, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो आपने अगर वो टेस्ट में अगर फेस कर लिया ना, तो आप मेन एग्जाम में इतना नर्वस नहीं हो गया। और दूसरी चीज क्या होता है, अगर मेन टेस्ट में अगर आपने ऐसा क्वेश्चन फेस कर लिया जो आपको नहीं आता है, तो आप उसका खुद से आंसर दोगे। तो टेस्ट में जो चेकर है वो आपको कितने मार्क्स देगा, उसके बेसिस पे आप अपने खुद के आंसर भी इवैल्यूएट कर सकते हो। राइट। यार ये तो मैंने मन से लिखा, फिर भी मुझे 4 में से 2 तो दो आ तो ही दे गए। रहे। वही तो सारे आप करो ओपन बुक के लिए भी, क्योंकि 4 घंटे का अपन ने कभी आज तक पेपर नहीं लिखा, प्लस फॉर्मेट डिफरेंट है, ओपन बुक है। ओपन बुक इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। टेस्ट इज नेसेसरी। टॉकिंग अबाउट माई ओन टेस्ट, मैंने टोटल 6 लिख पाया था, माई टारगेट वॉज मच मोर, एंड मिनिमम 8 था मेरा टारगेट कि 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, बट आई कुड गिव ओनली 6। दैट वाज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई कुडंट अटेम्प्ट ऑडिट, एंड मेरा जो GFRA सिलेक्टिव था उसका मैं नहीं कर पाया था, बट माई टारगेट वॉज ऑलवेज 8। सो आई वुड सजेस्ट दैट एटलीस्ट 1 आप हर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का लिखो, क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन इन माय हेड आल्सो कि यार मैंने ओपन बुक का टेस्ट नहीं दिया, मैंने ऑडिट का टेस्ट नहीं दिया। सो दैट I would have of course wanted to prevent that, so that's why 1 test per subject. गॉट इट। जैसे ऑडिट का जिक्र हुआ अक्षत, सब Hmm. एकदम मतलब कॉमन क्वेश्चन, आपको भी इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। Yeah. हाउ टू हाँ टैकल थियरी सब्जेक्ट्स?
हाँ, लाइक ऑडिट एंड लॉ। लॉ तो फिर भी डिसेंट है, ऑडिट को कैसे टैकल करें? लॉ में आप फिर भी समझ सकते हैं। यस। ऑडिट में आप समझेंगे भी तो भी इतना ज्यादा बड़ा पोर्शन है कि आप समझने बैठे तो पोर्शन नहीं होएगा। हम्म। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, फोकस ठीक ऑन है, कीवर्ड्स। या मैंने क्या किया था, मैंने एसेज जो एसेज 36 होते हैं इंक्लूडिंग एसक्यूसी, उस पर मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा कम ध्यान दिया था, बिकॉज मेरा मानना था कि 36 essays, even if I do it, then also in the exam there might be a question and I will be unable to understand which essays is referring to. हम्म। ओके, ये कौन से essays में से आया है। तो essays थोड़े वो सब्जेक्टिव भी होते हैं, वेग भी होते हैं। नॉन ऐसे चैप्टर्स जो है, जैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स हो गया, आपका ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हो गया, यस। इंश्योरेंस हो गया, तो वो थोड़े और प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो। उसमें अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि लोन का कैसे वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपको आ जाएगा, आ जाएगा। आपको मालूम है कि एग्जामिनर क्या मांग रहा है। तो इसलिए मैंने नॉन ऐसे पे ज्यादा ध्यान दिया था, बट गोज विदाउट सेइंग एसेज को मैंने छोड़ा नहीं था, एसेज भी मैंने किए थे। एंड इट्स जस्ट दैट उसको थोड़ा मैंने कम इंपॉर्टेंस दिया था। नाउ अदर थिंग्स आई डिड इन ऑडिट, कीवर्ड्स पे मैंने आपको बोल ही दिया, ध्यान दीजिए आप लोग। और आप क्या कर सकते हैं, आपने जो ऑडिट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और जो आपने दिन में पढ़ा है ना, उसको आप रात में एक वॉइस नोट बना लो उसका, ऑडिट का। तो जैसा आप ऐसे अगर 500 ऑडिट एविडेंस अगर आपने वो पढ़ा और फिर आप उसका वॉइस नोट बनाओगे, तो जब आप बोल रहे हो तब आपका एक और बार रिवीजन हो रहा है। फ्यूचर में जब आप उसको सुनोगे तब वापस रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि आपने उसी दिन सुबह आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये बोलने में और ये सब में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, करेक्ट। और वो आपके दिमाग में बैठता भी रहेगा। तो दैट इज समथिंग यू ऑल कैन डू। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा उससे कि अरे अपने को भी आ रहा है, अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हाँ, प्लस वो आपके फ्यूचर रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा कि फ्यूचर फ्यूचर में। के लिए भी काम आएगा, एग्जैक्टली क्योंकि आपका खुद का ड्राफ्टेड है, आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स राइट। है, बट थियोरी सब्जेक्ट्स में इट्स बेटर इफ यू मेक मेक योर ओन ओन। रिवीजन नोट्स। व्हाट इज योर टेक ऑन क्वेश्चन एंड आंसर इन ऑडिट? मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे प्रैक्टिस करें, हाउ डू वी क्रैक दैट? मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितने प्रैक्टिस करें? कहाँ से, इन द सेंस आप लाइक आईसीएसएम लाइक फॉर क्या? एग्जांपल आईसीआई के, मैं बोलता हूँ आईसीआई के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो हाउ डू वी प्रैक्टिस इट? मतलब लिख कर करें, रिफर करें, थोड़े लिख कर थोड़े रिफर नहीं, करें, कैसे मैंने करना एक भी चाहिए? नहीं लिखा था, बिकॉज मैंने एक भी नहीं लिखा था, ओके। बिकॉज उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, और उधर आप प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन जो अंडरलाइनिंग है, आप जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है उसमें क्लॉज नंबर वो सब तो लिखना मैंडेटरी होता है। तो आप लिखिए एज पर क्लॉज दिस ऑफ शेड्यूल ये, और फिर उसको मैंने क्या किया था, मेन एग्जाम में मैंने उसको पूरा जो भी क्लॉज में लिख रहा हूँ उसको पूरा एक बॉक्स में डाल दिया था मैंने। ठीक है, गॉट तो पूरा पहले अपन ने क्लॉज लिख दिया, उसको बॉक्स में डाले, एग्जामिनर को ये अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आप फिर अपना मेन आंसर वो लिंकिंग चालू करिए। करेक्ट। तो राइटिंग प्रैक्टिस मत करो, पहले राइटिंग प्रैक्टिस डायरेक्टली टेस्ट में करो, टेस्ट में कर लो आप। नहीं तो ऑडिट में बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पास नहीं कर नहीं कर पाओगे। सकते। हाँ, तो अक्षत, मेरे को एक और चीज़ जाननी है, मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी ये भी बोलते हैं सर मेरे को इसका आंसर पता है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप बोलोगे थोड़ा वैलिडेशन मिल जाएगा उस चीज़ को। ओके। हाउ डू आई प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम? मतलब मेरे को वर्ड टू वर्ड देना है प्रैक्टिकल में, अगर मेरे को एसएफएम में मेरे फैकल्टी ने अलग प्रेजेंटेशन दिया है, मेरा अलग प्रेजेंटेशन, आंसर सेम आ रहा है, आईसीए का अलग प्रेजेंटेशन, आंसर सेम आ रहा है, एफआर में आप अगर देखोगे, एफआर में आपको पता है मॉड्यूल में इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया चीज़ों को, तो फिर हम उसका एफआर में मॉड्यूल वाला हमको रेप्लिकेट करना है या हम खुद से कर सकते हैं, फाइनल आंसर मैच होना चाहिए? हाउ डू वी प्रेजेंट आंसर्स इन एग्जाम? मतलब क्या माइंडसेट रहना चाहिए इसके अंदर? I'll be very honest, I was also tensed about this in practical subjects like FR and all. यार, should it match ICI presentation? One reason being कि मैंने GFRS लिया था, तो मेरे लिए 200 मार्क्स कंसर्न 200 थे। मार्क्स हो गया था। ठीक है, तो but I would suggest that just go with your faculty. Just and language in practical does not matter. Concept and idea should be correct. ओके। ओके, तो अगर आपकी फैकल्टी ने मेथड भी यूज किया, कुछ टैब्यूलर कर दिया या कुछ और पे मेथड, फ्लो चार्ट कुछ भी यूज कर दिया, एंड आईसीए हैज रिटन अ प्रॉपर टेक्स्ट आंसर, just ensure that the logic and the method used by the particular faculty is correct. Okay, once you do that, your own presentation does not matter a lot in practical. आंसर मैच होना, एक बार चेक कर लो फैकल्टी ने जो किया उसके हिसाब से आंसर मैच हो रहा आईसीआई है के आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। बस।
If that matches, then there's no harm in just presenting it in your own manner. Right. ठीक है. And theorem of course goes without saying that ICI का suggested answer जो होता है that is from the module, so try keeping it as close as possible. लॉ में अगेन लॉ में बहुत जन पूछते कि यार जो बेयर एक्ट का लॉ है शायद जस्ट रेप्लिकेट दैट. आई वुड Right. से कि इतना आपको नेसेसरी नहीं है. आप बस वो जो आइडिया है लॉ में कि यू कैन से फिनेंशियल क्रेडिटर अगर जाना चाहता है ये आईपीसी के प्रोसेस में, तो एनसीएलटी को क्या क्या सबमिट करना है, कैसे करना है, वो सब आप बस प्रोसेस आपको आना चाहिए. वर्ड्स डोंट मैटर. Words don't matter. No. Basically, the meaning of the answer should match with ICI. Yeah. You can write in your own words. Of course, keywords Yeah. present रख लो तुम लोग, वो words proper use करो. That हाँ. will do the job. तो देखो हाँ. अक्षत जिनको AR4 है वो खुद बता रहे कि you need not worry about those things की exact match करे, वो possible भी नहीं है. अगर अपन देखें हाँ, हाँ. practical it is impossible to achieve that. Yeah. किसी के लिए भी possible नहीं है. Yeah. Perfect. अक्षत एक सवाल अभी कुशल ने पूछा है. Did you prepare your own notes in any of these subjects? आपने Yeah, definitely I did. For practical there was not much need. मतलब practical में तो क्लास में ही आप लिख लेते हो. right. But own notes for law I had done that. Law में जैसा सब लोगों को मालूम है कि वो जो भी कंटेंट होता है ICI-SM में या कोई भी और ट्यूशन नोट्स में, तो बहुत थियोरेटिकल, बहुत एक पैराग्राफ टाइप में होता है. तो वो मुझे जमता नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे फ्लो चार्ट्स में आई यूज्ड टू मेक फॉर लॉ. Okay, I tried doing that for almost all the sections in law. नहीं तो आप again in those 1.5 days before the exam, unless you have such concise and easily understandable notes, you won't be able to sail through those 1.5 days. correct. And for audit also, if you check my audit का textbook, it is full of yellow sticky notes. ये मैंने खुद ने audit study leave में चालू किया था पढ़ना. And जब मैं first time पढ़ रहा था, तभी मैंने यार मुझे मालूम था कि अभी टाइम लगेगा खुद के ऐसे बनाने में, लेकिन आगे मुझे बहुत हेल्प होगी. Right. तो दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू टेक दोस येलो स्टिकी नोट्स एंड मैं खुद के नोट्स बनाता था इजी लैंग्वेज में. यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म्स आल्सो, दैट विल हेल्प यू. बहुत बार आईसीआई लंबे लंबे देता है फुल वर्डिंग्स, बट यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म्स दैट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग इट आल्सो. गॉट इट. सो जैसे थियरी में अक्षत ने मतलब कुछ गाइडेंस किया थी, एक तो आप नोट्स वगैरह बना लो सेल्फ के, बहुत अच्छे होते, काम आते. एग्जाम में फोकस ऑन कीवर्ड्स, क्वेश्चंस आप जब पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ो, लिखने वाली प्रैक्टिस आप टेस्ट में कर लो. वैसे Yeah. अक्षत गिव सम टिप्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मतलब आपको अगर 2 टिप्स मैं मांगू कि प्रैक्टिकल में अगर आप ये कर लोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, तो व्हाट विल बी द 2 देखो. टिप्स फॉर प्रैक्टिकल? जैसे मैंने थ्योरी में बोला कि थ्योरी में आप आंसर लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, प्रैक्टिकल में उल्टा है. प्रैक्टिकल में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो इट इज मच बेटर इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ. राइट. आपने फैकल्टी से, आपने ट्यूशन में पढ़ लिया, आपने समझ लिया. आप जब सम भी सॉल्व करोगे तो पहले उसका जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट है, लाइक इंडियस 2 में कि यार अगर वो फिनिश गुड ही लॉस मेकिंग है तो आप कॉस्ट या फिर एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे रॉ मटेरियल करेंगे. तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया. अभी उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करिए. ओके, उससे क्या है, अगर करेक्ट गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, रॉन्ग गया तो कुछ लोगों का ड्रॉप होएगा. लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर रॉन्ग जाता है, यू विल रिमेंबर योर मिस्टेक टिल द एग्जाम डे आल्सो. यार मैंने ये मिस्टेक किया तो, और वो आपको स्ट्राइक होएगा ये. लेकिन अगर फैकल्टी का आपने देख लिया, फैकल्टी तो अभी करेक्ट ही करेगा, तो आपको क्लिक नहीं होएगा, वो क्लिक नहीं होएगा. क्योंकि फैकल्टी के साथ करोगे तो सही रहने वाला है, देख के करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो हमको भी क्लिक हो जाता, लेकिन खुद करने में फर्क है. खुद करने में. फिर डीटी में भी ऑल पीजीबी क्वेश्चंस एंड ऑल, मैंने कभी वो टिक नहीं किया. मतलब ऐसा नहीं कि ये दिख रहा है और फिर टिक. हमेशा सोचता था कि यार ये डिडक्शन अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. आई वुड इमेजिन कि सॉल्यूशन में किधर है, देन आई वुड गो टू द सॉल्यूशन व्हिच वाज प्रिंटेड, एंड देन उधर फिर मैं टिक करता था. एंड अगर रॉन्ग जाता था तो आई वुड हाईलाइट इट. यू कैन highlight the mistakes that you make so that in the future that will help you. Right, got it. अक्षत, आपने एग्जाम में सारे 8 पेपर में did you attempt full 100 मार्क्स का पेपर, या कुछ पेपर थे जो लेंदी गए आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए? Definitely I couldn't attempt all papers with 100 marks. FR में जो क्वेश्चन 1 था उसका बैलेंस शीट मेरा टैली नहीं हुआ था, तो वो रह गया था मेरा. SFM I could do, ऑडिट भी मेरा हो गया था, लॉ भी.
मेरा जल्दबाजी में लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस थे लेकिन हो गए थे. हम्म. सेम गोज फॉर एससीएमपी. डीटी में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो डीटी में मेरा थोड़ा रह गया होएगा. बाकी आई कुड मैनेज. Perfect, Akshat. Perfect. Like in all these papers, the papers were very lengthy. So जो लास्ट के मेरे 20-25 मिनट थे वो तो बहुत, either I was shortening my answer or I was writing very quickly. Quickly. ऐसा लगता है वो लास्ट के 25 मिनट की स्पीड पूरे 3 घंटे मिल जाती तो बात ही हाँ क्या होती. हाँ. तो वैसे मैंने अटेम्प्ट कर लिया होएगा, बट एफआर एंड डीटी में तो मेरा छूटा ही था. राइट, गॉट इट. चलो अक्षत, थैंक यू सो मच. बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा अक्षत. मैंने मतलब हाँ ऐसे प्रिपरेशन वाइज पूछता गया, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है. हाँ. अगर अगर किसी स्टूडेंट को नवंबर 22 में क्लियर करना है, व्हाट गाइडेंस, व्हाट दैट 1 or 2 टिप्स यू विल गिव हिम कि भाई ये करो, इस चीज पे ध्यान दो तो बहुत फर्क पड़ जाएगा. ओके, सो एज आई सेड, वॉइस नोट्स आप बनाओ. ठीक है, वॉइस नोट्स आप रोज रात सोने से पहले जस्ट सुन लिया करो. आपके जो लीस्ट प्रोडक्टिव आदत होते हैं उसमें मेक यूज ऑफ वॉइस नोट्स, रिविजन लेक्चर्स. For many subjects like DT and all, it's not possible to cover the portion on your own in a very short span of time. So make use of revision lectures. रिवीजन लेक्चर्स. Now, second advice, if I had to give, it would be that जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो उसमें जो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लगते हैं उनको कैंसिल करिए. लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक पार्ट कुछ ज्यादा ट्रिकी लग जाता है ना, तो उसको हाईलाइट, क्वेश्चन में जो वो पार्ट है उसको हाईलाइट करो, और उसका सोल्यूशन में जो पार्ट है उसको भी हाईलाइट करो. एंड नेक्स्ट टाइम यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट हाईलाइटेड पार्ट. या तो ऐसे आपका ट्रिम होता रहेगा, इतना जो बल्कि अपना सिलेबस है वो आपका शॉर्टन होता रहेगा. And you can of course follow ABC analysis also, that will help you in those 1.5 days. And I would say that आप जब अपना फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन करें तभी आप अपनी 1.5 डेज स्ट्रैटेजी भी प्लान करके रखिए. परफेक्ट. बिकॉज आई फील जो आप 1.5 डेज में कवर नहीं कर पाए वो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा. ऐसा मेरा भी मानना है. मैं भी यही बोलता हूँ particularly for theory. एब्सोल्युटली. मतलब जब तक अपन पहली बार में पढ़ेंगे इतना, दूसरी बार में इतना होना चाहिए, तीसरी बार में इतना होना चाहिए, ताकि वो 1.5 डेज में इतना होके रिवाइज हो सके हमारे लिए. तो अक्षत ने वैसे ना बहुत, मतलब ऐसे होता है ना, बेसिक चीजें बताई, लेकिन वही करना है. यू नीड नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. बस जैसे इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते हुए चलो, उसको रिवाइज करते हुए चलो. सो थैंक यू सो मच अक्षत फॉर ज्वाइनिंग. इट वॉज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू. मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच अक्षत, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आउटकमिंग्स एंड everything. Thank you so much, sir. Thank you so much, Akshat. Bye bye everyone. Bye bye to all the students. Take care and thank you so All much the best. to all the lovely students for joining. And yes, Akshat की तरफ से भी all the best. नेक्स्ट टाइम ऑडियंस में से कोई आपके साथ इंटरव्यू में रहेगा. That's all. ये तुम्हारा मोटिवेशन रहना चाहिए भाई. अक्षत तो फील ले रहा है जिंदगी के अभी. My motivation during if someone asks me my motivation, many times I used to visualize कि यार मेरा रिजल्ट आ गया and people are taking my interview. So what you visualize, what you visualize is what happens. तो अगर आपको डर है फेल होने का, डर है कि यार अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप विजुअलाइज करो वो दिन आपका रिजल्ट है, या फिर आपके 8th पेपर के बाद भी आपका रिएक्शन कि यार पेपर अच्छे चलेगा, मैं पास हो जाऊंगा इस बार. ऐसे रोज रात को सुबह उठते ही अगर आप वो पॉजिटिव नोट के साथ आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपका बाकी का दिन अच्छा जाएगा. इवन आई बिलीव इन वन थिंग, मतलब वास्तु से तथास्तु. मतलब वॉट एवर यू बिलीव, द मतलब तुम्हारे आजू बाजू की चीजें दैट विल मेक इट हैपन. बट उसके लिए आपको अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए. यू शुड बिलीव इट कि अपन कर सकते हैं. अपन बोलेंगे नहीं कर सकते तो भाई वो बोलेगा तथास्तु, नहीं होएगा तेरे से. अपन बोलेंगे कर सकते तो बोलेगा तथास्तु, हो जाएगा तेरे से. सो वो याद दिला दिया अक्षत. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच अक्षत फॉर योर लवली वर्ड्स. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. गुड नाइट.